Hello, good morning, children. Today I am starting chapter number 4, Method of Induction and Binomial Theorem. It is the name of the chapter, Method of Induction and Binomial Theorem. In this chapter, there are 5 points which we have to study. Okay, first point is mathematical induction. First point is mathematical induction. Second point is binomial theorem. Okay, but in a second point, binomial theorem proof is not we have to study, means theorem is cancelled, proof of the theorem is cancelled from the syllabus. Then third one is a general term of binomial expansion. And fourth and fifth point, these 2 points are reduced from the syllabus. Okay, means only 3 points we have to study in this year for this chapter. Okay, up to general term of binomial expansion. Fourth and fifth points are reduced from the syllabus. Okay, फिर से आप मुझे पूछते बैठोगे कि मैम ये सिलेबस में है क्या, तो आपको पहले ही बता रही है, these 2 points are reduced from the syllabus. Now I am here starting first point as a mathematical induction. Then what is the principle of mathematical induction? Mathematical induction means what here? तो इसी का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. Here first point, principle of mathematical induction. On this point, there is a first exercise, that is a 4.1. Okay, but what is the principle of a mathematical induction? It is generally denoted by P of n. ये किससे डिनोट होता है? P of n. Means let P of n be a statement involving the natural numbers n such that. Okay, तो ये क्या है? P of n. It is a statement involving the natural number n such that first is a P of 1. आपको क्या दिया है? P of n. It is a statement involving the natural number n. ये n natural number के लिए है, such that first point is P of 1 is true. That is P of n is true for n is equal to 1. Okay, and the second one is P of k plus 1 is true whenever P of k is true, then P of n is true for all n belongs to capital N. Okay, this is known as the principle of mathematical induction. Means P of n, it is let P of n be the statement involving the natural number n such that P of 1 is true. That is P of n is true for all n is equal to 1. n is equal to 1 के लिए ये statement क्या है? True है. The second one is P of, यहाँ 1 की जगह k plus 1 is true whenever P of k is true. Then P of n is true for all n belongs to n, and it is said to be as or known as principle of mathematical induction. Okay, now what is the working rule? Working rule,
means we have to use the following steps. Okay, suppose that we have to prove that a certain property of an expression in N. Here N belongs to capital N. Okay, is true for all N belongs to capital N. Okay, then following steps are, means to prove that we have to use following steps. Then we have to use following steps. ओके, तो ये वर्किंग रूल है, तो जस्ट इट इज अ इंफॉर्मेशन, मीन्स क्या करना है हमको। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपको प्रूव करना है, तो किस तरह से करोगे, उसका वर्किंग रूल क्या है। फर्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 1, step first. Okay, it is said to be as a foundation. It is a foundation step. Okay, denote the statement starting the property by P of n. Verify that P of 1 is true. जब एग्जाम्पल आ जाएंगे तब आपको ये पता चलेगा क्या है। स्टेप सेकंड, इट इज अजम्पशन। आपको एज्यूम करना है। ओके, एज्यूम दैट P of k is true and write the result for P of k. सेकंड स्टेप क्या है? assumption step. It is assume that P of k is true and write the result for P of k. Okay, then step number 3, step third, it is a succession. It is the important step, succession means क्या? एक के बाद एक. Okay, prove that P of k plus 1 is true. आपको प्रूव करना है, यहाँ एज्यूम करना है। ओके, और पहले इसी में क्या है, आपको P of n जो प्रॉपर्टी है वेरीफाई करना है। P of 1 के लिए इट इज ट्रू। सेकंड में अजम्पशन करना है कि P इट इज ट्रू फॉर P of k एंड राइट द रिजल्ट फॉर P of k। थर्ड स्टेप में क्या करोगे? सक्सेशन करोगे। मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट दिस प्रॉपर्टी P of k plus 1 is true when P of k is true. एग्जाम्पल में हम देखेंगे तभी पता चलेगा। ओके, स्टेप 4, इट इज अ इंडक्शन। ये
इंडक्शन स्टेप है। मीन्स इफ P of k plus 1 is true, अगर ये P of k plus 1 के लिए ट्रू है, then by mathematical induction P of n is true for all n belongs to n. मीन्स यहाँ स्टेप 4 में क्या करना है, स्टेप 3 का रिजल्ट लेना है। अगर P of k plus 1 के लिए ये ट्रू है, then by using mathematical induction it is a true for Pn, means for all n belongs to n के लिए ट्रू है। तो ये 4 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप इज अ फाउंडेशन स्टेप, सेकंड स्टेप इज अ assumption, third step is a succession and fourth step is a induction step. Now directly I am starting here exercise 4.1. इतना ही theory part है and on this basis of that we have to solve exercise 4.1. okay? अभी यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल है, इतने तो एग्जाम्पल मैं नहीं ले लेगी, आपको इसी में से सॉल्व करा के दे देगी। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल here write down exercise, one minute, exercise 4.1. okay, prove that, prove by method of induction for all n belongs to capital N. okay, first example 2 plus 4 plus 6 plus ... okay, plus 2n, it is the last term। तो ये फॉर्मूला है, means it is a series or summation of even natural numbers and last term is here 2n. The formula for that means sum of all n natural numbers but even natural numbers is equal to, it is a formula n into n plus 1. ये आपको प्रूव करना है। ओके, देन सॉल्यूशन देखो, ये क्या है, सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1। ये फॉर्मूला है, ये आपको प्रूव करना है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। हियर सॉल्यूशन लेट, तो इसी को हम Pn कंसिडर करेंगे, P ऑफ n विच इज इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट टर्म इज 2n। ओके, which is equal to n into n plus 1 for all n belongs to capital N। okay, step 1, अभी step 1 means क्या है देख लो, step 1 is a foundation step। okay, तो यहाँ n की जगह क्या पुट ऑन करोगे, 1 पुट ऑन करोगे। ओके, स्टेप फर्स्ट, तो यहाँ n इज इक्वल टू 1 के लिए ये पुट ऑन करना है, put n is equal to 1, therefore LHS which is equal to, तो LHS में n की जगह हम क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। ओके, तो देखो LHS कौन सा LHS, ये वाला, आर यू गेटिंग? तो LHS क्या आ जाएगा, इट इज ओनली सिंगल टर्म दैट इज 2, P ऑफ n इज इक्वल टू 1। ओके, तो सिर्फ एक ही टर्म लेना है दैट इज 2। ओके, देन RHS विच इज इक्वल टू, RHS मीन्स क्या है, ये आपका LHS है, इट इज LHS एंड इट इज RHS। तो RHS में n की जगह 1 लिख दो, तो ये 1 इंटू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1 इंटू 2
and which is equal to 2. Means LHS is equal to RHS. It is true for n is equal to 1. Are you getting? तो यहाँ लिखोगे which is equal to LHS. Means here P of n is true for n is equal to 1. तो स्टेप फर्स्ट में क्या है? इट इज अ फाउंडेशन स्टेप. तो यहाँ n इज इक्वल टू 1 के लिए ये रिजल्ट ट्रू है, ये आपको बताना है. मीन्स टेक LHS. तो LHS में यहाँ क्या लोगे? देखो यहाँ लास्ट टर्म 2n है. ओके तो यहाँ n की जगह 1 लिख दो. तो 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा? 2. तो RHS क्या आ जाएगी? RHS में भी n की जगह 1 लिख दो. 1 इंटू 1 प्लस 1 मीन्स दिस, which is equal to 1 into 2, which is equal to 2, which is equal to LHS. Means here LHS is equal to RHS. Then this result P of n is true for n is equal to 1. It is a step first and it is a foundation step. Now step second. What is the step second? It is a assumption. आपको assume करना है. It is a true for के के लिए ट्रू है, ये आपको प्रूव मीन्स एज्यूम करना है. ओके तो यहाँ क्या लिखोगे? स्टेप सेकंड, इट इज अ अजम्पशन स्टेप. लेट अस कंसिडर. तो ये एज्यूम करना है, अंडरस्टैंड करना है. कंसिडर दैट P ऑफ n इज ट्रू. ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k. n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, ये हमको कंसिडर करना है. मीन्स ये LHS क्या हो जाएगा? देयरफॉर 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट प्लस ये 2 n के लिए n इज इक्वल टू k. तो ये क्या हो जाएगा? लास्ट टर्म 2k हो जाएगी. एंड विच इज इक्वल टू RHS में n की जगह k फिलअप कर दो. तो k इंटू k प्लस 1. समझ में आ गया? Okay, yes. Now step third. अभी स्टेप थर्ड क्या है? इट इज अ सक्सेशन स्टेप. क्या है? एक के बाद एक. मीन्स k के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, ये हमको प्रूव करना है. ओके तो यहाँ लिखोगे वी हैव टू प्रूव. तो हर एक एग्जाम्पल में आपको इसी तरह से करना है. We have to prove that P of n is true for n is equal to k plus 1. समझ में आ रहा है? ये प्रूव करना है. That is to prove that. क्या प्रूव करना है? देख लो. 2 plus 4 plus 6 plus and so on plus ये 2 n की जगह क्या आ जाएगा? k plus 1. ओके इज इक्वल टू n की जगह k plus 1 into k plus 1 plus 1. Is it right? Yes. ओके तो ये प्रूव करना है. मीन्स विच इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? k प्लस 1 इंटू k प्लस 2. ये आपका LHS है एंड इट इज RHS. ओके नाउ एग्जाम्पल बिग है, थोड़ा सा केयरफुली करोगे, ये 3 मार्क 4 मार्क्स के लिए आ जाते हैं. नाउ वी हैव टू कंसिडर LHS विच इज इक्वल टू. तो LHS मीन्स ये आ जाएगा. ओके तो क्या लिखोगे? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ क्या जाएगा? 2k प्लस 2. क्या आ जाएगा? 2k प्लस 2 आ जाएगा. ओके यू हैव टू राइट 2k प्लस 2 विच इज इक्वल टू. तो यहाँ मेरा स्टेप सेकंड में क्या था, थोड़ा सा मुझे ये भी चाहिए. स्टेप सेकंड में हमने क्या लिखा था? स्टेप सेकंड में हमने ये लिखा था, यहाँ
एजम्पशन स्टेप था। तो यहाँ क्या लिखा था, लेट अस कंसिडर, थोड़ा सा इसी का हेल्प चाहिए, कंसिडर दैट P of n is true for n is equal to k. ओके, n is equal to k के लिए ट्रू है, मीन्स क्या था, therefore 2 plus 4 plus 6 plus यहाँ हमने क्या लिखा था, लास्ट स्टेप, लास्ट टर्म 2k एंड विच इज इक्वल टू, यहाँ n इंटू n प्लस 1 था, तो यहाँ n की जगह k इंटू k प्लस 1, तो इसी को हम 1 इक्वेशन लिखेंगे। अभी ये मुझे यहाँ चाहिए। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे दो, ये स्टेप सेकंड इम्पॉर्टेंट है, ये लगता है थर्ड स्टेप के लिए। तो थर्ड स्टेप में मैंने ये लिखा था 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस यहाँ लास्ट टर्म 2k प्लस 1 विच इज इक्वल टू ये k प्लस 1 इंटू के प्लस 2। ओके, तो अभी यहाँ मुझे चाहिए ये LHS 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस एंड सो ऑन, ये 2k प्लस 2 है। ओके, तो यहाँ विच इज इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस एंड सो ऑन प्लस ये 2k यहाँ प्लस 2 है। ओके, तो देखो ये 2k, बट 2k यहाँ तक ये क्या आ जाएगा, k इंटू के प्लस 1 आ जाएगा, इज इट राइट, k प्लस k इंटू के प्लस 1 आ जाएगा अप टू हियर, ये 2k। ओके, प्लस ये 2 इंटू के प्लस 1, समझ में आ रहा है क्या, देख लो। ओके, नाउ विच इज इक्वल टू, अभी ये हमारा किस तरह से आ जाएगा, नाउ विच इज इक्वल टू हियर, देखो ये अप टू 2k मीन्स क्या आ जाएगा, k इंटू के प्लस 1 मीन्स यहाँ तक, ये k इंटू के प्लस 1 लिखेंगे, k इंटू के प्लस 1। ओके, फिर से ये प्लस 2 इंटू सॉरी इन ब्रैकेट k प्लस 1। ओके, तो ये कहाँ से लिखा, ये k इंटू के प्लस 1 मीन्स इतने टर्म का बाय यूजिंग 1, या लिखोगे बाय यूजिंग 1। तो ये थोड़ा सा स्टेप आप क्या करोगे, अंडरस्टैंड करोगे और लिखोगे यहाँ। आर यू गेटिंग, यस। नाउ अभी देख लो, ये k इंटू के प्लस 1 प्लस 2k प्लस 1, यस, देन विच इज इक्वल टू, अभी यहाँ देख लो k प्लस 1, हियर ऑल्सो k प्लस 1, तो कॉमन ले लो, तो k प्लस 1 आ जाएगा इंटू k प्लस 2, इट्स ओके, मीन्स यही क्या है, RHS है, विच इज इक्वल टू RHS, मीन्स थर्ड स्टेप में ये सक्सेशन स्टेप है, तो उसी में हमको प्रूव करना है इट इज ट्रू फॉर k प्लस 1 ऑल्सो। ओके, उसी के लिए प्रूव करना है, तो ये LHS which is equal to RHS, therefore P of n is true for n is equal to k plus 1। तो ये थर्ड स्टेप प्रूव हो गया। नाउ फोर्थ स्टेप, तो फोर्थ स्टेप बहुत इजी है, डायरेक्टली हम लिखेंगे इट इज ट्रू फॉर और n belongs to capital N। स्टेप 4, तो स्टेप 4 में क्या लिखना है, फ्रॉम ऑल स्टेप्स, ये हर एक जगह सेम आ जाएगा, फ्रॉम ऑल स्टेप्स अबव by the principle of mathematical induction
mathematical induction P of n is true for all n belongs to capital N. Therefore, 2 plus 4 plus 6 plus and so on plus 2n is equal to n into n plus 1 for all n belongs to capital N. बस हो गया, इतना ही करना है. आपको पहले 2-3 एग्जाम्पल डिफिकल्ट लगेंगे, आप ट्राई करोगे सॉल्व करने का. ओके, नाउ सेकंड एग्जाम्पल नंबर 2. Example number 2. Here 3 plus 7 plus 11 plus dot dot for n terms. Sorry, 2 n terms is equal to n into 2n plus 1. ये आपको प्रूव करना है. It is a true for all n belongs to capital N. Okay, solution. Let P of n is equal to 3 plus 7 plus 11 plus dot dot to n terms which is equal to n into 2n plus 1. Okay, for all n belongs to capital N. अभी ये जो है it is a arithmetic progression है. Okay, it is in a arithmetic progression, but you have to write 3, 7, 11 and so on. Okay, are in arithmetic progression. Here a is equal to means first term is a 3 and common difference d is equal to 4. तो n टर्म क्या आ जाएगी? लास्ट टर्म tn टर्म क्या आ जाएगी? What is the tn? Then tn is equal to, how to find tn? किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? tn is equal to a plus n minus 1 into d. It is the formula for finding the n term. Okay, means tn is equal to क्या आना चाहिए? a is 3 plus n minus 1 means यहाँ n minus 1 as it is, d क्या है? 4 है, which is equal to 3 plus 4n minus 4 which is equal to 4n minus 1. तो tn टर्म क्या आना चाहिए? 4n minus 1 आना चाहिए. ओके, तो यहाँ अप टू n टर्म्स, तो यहाँ लास्ट की टर्म नहीं दिया है tn टर्म, तो आपको इस तरह से फाइंड आउट करना है. Therefore pn is equal to, you have to write 3 plus 7 plus 11 plus dot dot last term is 4n minus 1 and which is equal to, you have to write n into 2n plus 1. ओके, तो आपको ये प्रूव करना है. तो ये इसी तरह से लिखना होगा. यहाँ नहीं दिया है tn टर्म, वी हैव टू फाइंड. ओके, देन स्टेप फर्स्ट. तो स्टेप फर्स्ट क्या है? इट इज अ फाउंडेशन स्टेप. इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. ओके, स्टेप फर्स्ट, पुट n इज इक्वल टू 1. तो LHS यहाँ n की जगह 1 पुट ऑन करोगे. ओके, therefore LHS which is equal to, तो देखो ये लास्ट टर्म में n की जगह 1 लिखोगे तो क्या जाएगा? 4 minus 1 which is equal to 3. Then RHS which is equal to 1 into 2 into 1 plus 1 which is equal to 1 into 2 plus 1 that is a 3 which is equal to 3. Therefore LHS which is equal to RHS means
this result is true for n is equal to 1. It is a foundation step. Okay. Therefore, P of n is true for n is equal to 1. n is equal to 1 के लिए ये true है, ये prove हो गया. Now step second. तो step second जो है क्या है? It is a assumption step. It is a true for n is equal to k. Okay? तो ये assumption step है. Let us consider. It is an important step. Let us consider that P of n is true for n is equal to k. n is equal to k के लिए ये true है, ये हमको लिखना है, assume करना है. ओके. Therefore 3 plus 7 plus 11 plus डॉट डॉट प्लस यहाँ n की जगह क्या लिखोगे? k. 4k प्लस सॉरी नॉट प्लस -1 इज इक्वल टू यहाँ k इंटू 2k प्लस 1. ओके. ये लिखना है. हियर राइट डाउन एज अ 1. इसी को इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे. ये थोड़ा सा केयरफुली करोगे. नाउ स्टेप थर्ड. और ये स्टेप सेकंड का इक्वेशन जो है हमको यूज करना है. ओके. स्टेप थर्ड इट इज अ सक्सेशन स्टेप. स्टेप थर्ड. ओके. we have to prove that P of n is true for n is equal to k plus 1. ये k plus 1 के लिए ट्रू है, ये प्रूव करना है. ओके. दैट इज टू प्रूव दैट ये 3 plus 7 plus 11 plus डॉट डॉट प्लस लास्ट स्टेप क्या है? यहाँ k plus 1. जहाँ भी n है वहाँ क्या लिखोगे? k plus 1 लिखोगे. तो यहाँ इन ब्रैकेट यू हैव टू राइट 4 into k plus 1. ओके. minus 1 which is equal to देखो हमारा यहाँ P of n क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर रही है. इट इज 3 plus 7 plus 11 plus एंड सो ऑन. यहाँ लास्ट टर्म 4n minus 1 है एंड विच इज इक्वल टू हमने फॉर्मूला जो है n इंटू 2n प्लस 1 है. तो यहाँ n के जगह क्या लिखोगे? k plus 1. लुक हियर n के जगह k plus 1. 4 इंटू k plus 1 minus 1 विच इज इक्वल टू यहाँ n के जगह क्या लिखोगे? k plus 1 कीप इन अ ब्रैकेट इंटू इन ब्रैकेट ये 2 एज इट इज n की जगह k plus 1 और ये प्लस 1. आर यू गेटिंग? अपने माइंड से कुछ भी नहीं लिखना है. विच इज इक्वल टू ये k plus 1 इंटू यहाँ क्या आ जाएगा देख लो. ये 2k plus 2 plus 1 मीन्स 2k plus 3 आ जाएगा. ओके. समझ में आ रहा है क्या? देख लो. तो आपको ये प्रूव करना है. देन हाउ टू प्रूव? ये एज इट इज नीचे लिख दो. ओके. यस. अभी किस तरह से प्रूव करोगे? देयरफॉर LHS हम LHS ले लेंगे विच इज इक्वल टू LHS में क्या है देख लो. 3 plus 7 plus 11 plus एंड सो ऑन प्लस यहाँ ये 4k plus 4 सॉरी हम इसी तरह से हम लिखेंगे. लास्ट टर्म जो है हमारा इन ब्रैकेट 4 इंटू k plus 1 minus 1
ये पहले लिखेंगे, देन विच इज इक्वल टू, इसी को सिंप्लीफाई करते जाएंगे, ये 3 + 7 + 11 प्लस एंड सो ऑन प्लस, अभी ये लास्ट टर्म है तो लास्ट के पहले वाली टर्म क्या आ जाएगी, व्हाट इज द प्रीवियस टर्म ऑफ द लास्ट टर्म, और सेकंड लास्ट टर्म, व्हाट इज द सेकंड लास्ट टर्म, क्या रहेगी, देखो ये टर्म होती है लास्ट सेकंड लास्ट टर्म, यहाँ ये सेकंड इक्वेशन में है तो वो क्या रहेगी 4 × k - 1, ये सेकंड लास्ट टर्म आ जाएगी, ओके और ये लास्ट टर्म प्लस इन ब्रैकेट 4 × k + 1 - 1, आपको सेकंड लास्ट टर्म यहाँ लिखना होता है, देन विच इज इक्वल टू, अभी ये सेकंड लास्ट टर्म तक, फर्स्ट से लेके सेकंड लास्ट टर्म तक ये क्या है, स्टेप सेकंड है, एंड बाय यूजिंग दिस इक्वेशन इट इज नथिंग बट, ये मीन्स क्या है k × 2k + 1, देयरफॉर वी हैव टू राइट हियर, क्या लिखोगे k × 2k + 1 प्लस ये एज इट इज लिखोगे 4k + 4 - 1, ये कहाँ से लिखा, फ्रॉम सेकंड, सॉरी फ्रॉम 1, आर यू गेटिंग, देन विच इज इक्वल टू, अभी सिंप्लीफाई कर दो इसी को, तो किस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये k एज इट इज 2k + 1, ओके प्लस देखो ये 4k + 3 आ जाएगा, 4k + 3, ओके देन विच इज इक्वल टू, अभी इसी को सिंप्लीफाई कर दो, k से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2k² + k + 4k + 3 मीन्स इट इज 2k² + 5k + 3, ओके तो ये क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, तो इसी के फैक्टर फाइंड आउट कर दो, फाइंड आउट द फैक्टर्स, ओके इसी के फैक्टर्स फाइंड आउट कर दो, तो फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, विच इज इक्वल टू, देख लो ये 2k², प्रोडक्ट 6 चाहिए तो क्या आ जाएगा 2 and 3, तो 2k + 3k, ये क्वाड्रेटिक है, इसी के फैक्टर्स फाइंड आउट कर दो, +3 मीन्स देखो ग्रुपिंग कर दो, ये आपको हो गया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 2k × k + 1 प्लस यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा k + 1, विच इज इक्वल टू ये 2k + 3 × k + 1, इस तरह से आ जाएगा, एंड इट इज नथिंग बट RHS है, देख लो k + 1 थर्ड स्टेप का RHS है, विच इज इक्वल टू RHS, ओके मीन्स इन अ स्टेप थर्ड दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर k + 1, ये हमने प्रूव किया, देयरफॉर P of n is true for n is equal to k + 1, इसी के लिए ये ट्रू हो गया, ओके अभी फोर्थ स्टेप, स्टेप नंबर 4, स्टेप 4, तो स्टेप 4 आपका जो भी है सिंपल है, फ्रॉम अबव इतना लिखना है, फ्रॉम ऑल अबव स्टेप्स, फ्रॉम ऑल स्टेप्स above by the principle of mathematical induction P of n, यहाँ कॉमा दे दो, P of n is true for all n belongs to capital N, ओके ये ट्रू है, ये प्रूव हो गया, ओके देन नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3,
Example number 3, write down the example. 1 square plus 2 square plus 3 square plus dot dot plus last term is here given last term, therefore no need for finding the last term. तो last term में n square दिया है which is equal to, तो यहाँ n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. Okay, means यहाँ it is a summation of, ये क्या दिया है, सम ऑफ n टर्म्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम दिया है, तो उसी का आंसर जो भी आता है दैट इज द फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6. तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है. ओके, सॉल्यूशन. ये हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूव कर देंगे. ओके.